Today we are here together to discuss our health assessment subject skills. Some are basic skills which are used to examine the patient for the diagnostic and therapeutic purposes. Let's today we will discuss a very common and basic demonstration of health assessment subject, which is head to toe assessment. So we have a patient. We will get through the examination from head to the assessment to an standard approach of the subject health assessment. So whenever we should examine the patient, the examiner should be standing on the right side of patient as per the standard, and we should make a tray for the general survey, which have the vital signs articles, torch, and ear speculum, nasal speculum, and other is hand techniques. So remember, whenever we use health assessment skills, each and every system, each and every organ of body, we should follow four basic steps of health assessment, which is one is inspection, second is palpation, third is percussion, and fourth is auscultation. Because these are the four basic skills which we use to collect data from the body of patient for the diagnostic purposes, for the assessment purposes, for the therapeutic purposes. So here we will go through from head to approach of assessment. So first of all, we introduce the patient, then we start our procedure and explain the patient to the procedure. Assalamu alaikum, Walaikum assalam. Mr. Wakar. My name is Amir. I am here to examine you and मैं आपको एग्जामिन करूँगा, आपको असेसमेंट करूँगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, तो हम आपकी नीड्स को देख सकें और आइडेंटिफाई कर सकें कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर हम उसको अप्रोच करके उसको बेहतर तरीके से कर सकें और आपकी केयर कर सकें। क्या आप हमें इजाज़त देते हैं? Yes. ठीक है। So after the examination, after the interview, we will go through our approach, which is head to toe approach. So first of all, we look to patient. General survey, we look to patient. We note three or four things. First, appearance of patient. पहले हम देखेंगे patient के appearance क्या है, फिर mood of patient, how the patient looks, anxious, happy, irritated, fearless, fearful, phobic. So these are the findings which we go further in first vision, just for the inspection. First look of patient. The patient is in sitting position, look, mood, appearance, hygiene, and these are things. So start from the head. हमारी बॉडी की जो सुपीरियर पार्ट है वो हेड है, ठीक है। हम हेड में देखेंगे, सबसे पहले हेड क्या आता है हमारे पास, हेयर्स। हेयर्स क्या है, हेयर से पहले देखेंगे पेशेंट की जो अपीयरेंस है, स्कल, ठीक है। स्कल की याद रखें, जब भी हम कोई भी एग्जामिन करेंगे तो हम हर पार्ट पे 4 टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। इंस्पेक्शन, जिसमें हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने अपनी आंखों से उस चीज़ को देखना है और उसको चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है। पल्पेशन में हम क्या करते हैं, पल्पेशन हम जो अपनी जो हैंड की फिंगर्स हैं उनसे बॉडी की डिफरेंट पार्ट को पल्पेट करते हैं थ्रू फिंगर्स, ताकि हम उसकी साइज़, उसका टेक्सचर, उसकी इन्लार्जमेंट्स को नोट कर सकें। और परकशन में हम क्या करते हैं, ट्रैपिंग करते हैं ताकि हम बॉडी साउंड्स को प्रोड्यूस करें और उनसे हम असेस कर सकें। एंड अस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं, अस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। उससे हमें क्या होता है, हम जो बॉडी के डिफरेंट साउंड्स हैं, जैसे गट साउंड्स हैं, हमारे जीआईटी साउंड्स हैं, बावल मूवमेंट्स हैं, या उसके अंदर जो हमारी चेस्ट साउंड्स हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट बॉडी साउंड्स को हम लिसन करते हैं स्टेथोस्कोप से, ताकि हम उसको रिलेट करें क्लिनिकली किसी भी इवेंट के साथ, किसी कार्डियक डिजीज़ के साथ, किसी स्पॉट डिजीज़ के साथ है, किसी जीआईटी प्रॉब्लम के साथ है, किसी और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं उनके साथ, ताकि हम देखेंगे आज जो हमें साउंड्स हैं बॉडी से वो किस तरह के कुछ कौन से टाइप के साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। और हर डिजीज़ का, हर डिसऑर्डर के जो साउंड्स होते हैं वो डिफरेंट हमें जो वो मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्कल ऑफ पेशेंट। स्कल कंसिस्ट ऑफ फेस एंड हेड। हेड में हम ये चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले पेशेंट की पोजिशन बनाते देखेंगे कि इसकी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि पेशेंट जो हेयर है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या कहाँ पे पेशेंट को हेयर लॉस है। हेयर लॉस मीन्स एलोपेशिया। एलोपेशिया क्या है, एक कंडीशन है जिसमें हेयर लॉस होते हैं। तो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम पहले देखेंगे पेशेंट हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, तो हम देखेंगे हेयर का टेक्सचर कैसा है, हेयर का टेक्सचर देखेंगे। फिर हम उसकी हाइजीन देखेंगे कि हेयर की हाइजीन कैसी है, पेशेंट को लाइस तो नहीं है, पेशेंट को डैंड्रफ तो नहीं है, पेशेंट को ड्राइनेस तो नहीं है,
पेशेंट को इचिंग तो नहीं है, यहाँ कोई भी सर्जिकल स्कार, इसके ऊपर कोई सर्जिकल स्कार या ट्रॉमा या एक्सीडेंट का कोई निशान तो नहीं है। सो इसका जो हेड है, इसके हमें कोई भी ऐसी चीज़, इसका जो टेक्सचर है वो नॉर्मल टेक्सचर है, और इनकी जो हाइजीन है वो भी एवरेज गुड हाइजीन है, एंड कोई भी इसको सर्जिकल स्कार नहीं है, और कोई भी हमें ट्रॉमा पे नहीं मिला। उसके बाद हम आते हैं पेशेंट के फेस पे। फेस हम देखें, फेस से ऊपर देखते हैं फोरहेड, फोरहेड में देखते हैं कि फोरहेड की अपीयरेंस क्या है, अपीयरेंस कैसी पेशेंट की। उसके बाद इसकी इंस्पेक्शन के बाद हम उसको पल्पेट करेंगे कि यहाँ पे कोई पेशेंट को ट्रॉमा तो नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कोई स्कार नहीं है, कोई कलर स्किन की ड्राइनेस नहीं है। उसके बाद हम आते हैं पेशेंट की आइज़ पे। आइज़ हम देखते हैं यहाँ पे पेशेंट को आइज़ आइज़ में देखेंगे आइज़ की अपीयरेंस कैसी है, आइज़ का लुक कैसा है, नॉर्मल शेप है आई की, एबनॉर्मल शेप है, डेविएटेड है, कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो नहीं है, या आई का बॉल बाहर तो नहीं आया हुआ, आई का बॉल अंदर तो नहीं है, ज़्यादा ट्रॉमा तो नहीं है, सर्जरी तो नहीं है, कैटरेक्ट तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, ग्लूकोमा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम आई में असेस करेंगे। उसके बाद आई मूवमेंट, ठीक है, स्पेशली हम आई मूवमेंट चेक करेंगे। इसकी जो आई मूवमेंट है बता दर्द को, इसकी जो आई मूवमेंट है वो बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट कर रही है एग्जामिनर के इंडिकेट्स के साथ है। तो उसकी आई मूवमेंट ठीक है, स्केलेरा ठीक है पेशेंट का, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कोई एनीमिया तो नहीं है पेशेंट को, और कोई ट्रॉमा नहीं है, सर्जरी नहीं है। आइस क्लियर के बाद हम नीचे आते हैं पेशेंट के नोज़ पे। नोज़ में हम देखते हैं कि नोज़ की जो बाहर की शेप है कैसी है, नोज़ बिल्कुल मिड लाइन पे है या डेविएटेड है, जो एक प्रॉब्लम होता है डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। उसके बाद उसकी बाहर की शेप देखेंगे, नोज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, और नोज़ के स्ट्रक्चर के साथ उसकी स्किन कैसी है। जब नोज़ का ऊपर से स्ट्रक्चर देखेगा तो पहले सुपरफिशियल के बाद हम थोड़ा सा डीप जाते हैं आउटर टू इनर। आउटर इसका जो शेप है वो बिल्कुल ठीक है, हमें इसमें कोई भी डेविएशन नहीं नज़र आ रही, कोई भी इसमें ट्रॉमा नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, स्कार नहीं है, पेलनेस नहीं है, चिप इसकी नहीं है। फिर जब हम कहते हैं क्या करते हैं, इसको पेशेंट को हम इनसाइड देखते हैं, हाइपर एक्सचेंज करेंगे, इनसाइड पे जाएंगे, इसकी हम एग्जामिन करेंगे अंदर से, ठीक है। अंदर से देखेंगे कि पेशेंट की जो पेटेंसी है, नोज की पेटेंसी क्लियर है, बायलेटरल क्लियर है, यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई अंदर से कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई अंदर से कोई पॉलिप्स तो नहीं है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, या पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई इस पेशेंट की। तो इसके लिए हम जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं नेजल स्पेक्यूलम, तो वो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये नेजल स्पेक्यूलम है। इसको हम जो यूज़ करने का तरीका है वो यहाँ इस शेप में करेंगे। और हमें टॉर्च चाहिए, नेजल स्पेक्यूलम और टॉर्च की हमें नोज का इनसाइड ऑफ एग्जामिनेशन करने के लिए। हम टॉर्च लगाएंगे, अंदर देखेंगे कि इसकी जो नेज की पेटेंसी है वो क्लियर है, अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, अंदर कोई सर्जरी तो नहीं होगी, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है। अंदर से जो नेजल म्यूकोजा है वो कैसा है, पर्पल है, रेड है, पिंक है, डार्क है, कोई फंगल इन्फेक्शन है या नॉर्मल अप्रोच है। और जो अंदर नेस्टल्स के अंदर जो हेयर होते हैं उनकी हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, नॉर्मल हेयर है या ज़्यादा अंदर हेयर है। नोज के बाद हम आते हैं पेशेंट की चीक्स पे, ठीक है, देखते हैं पेशेंट की चीक्स कैसी हैं। उनके बाद माउथ को पहले बाहर से देखेंगे, पेशेंट के लिप्स कैसे हैं, ठीक है। लिप्स में देखेंगे कि लिप्स के अंदर पेशेंट साइनोस तो नहीं है, साइनोस के बाद लिप्स में कोई इंजरी तो नहीं है, लिप्स के अंदर कोई टीयर तो नहीं है, लिप्स के अंदर कोई स्कार तो नहीं है, लिप्स ड्राई तो नहीं है, लिप्स की कोई स्किन तो नहीं डैमेज हो रही। यहाँ से जितने ऊपर देख लिया पेशेंट को लिप्स को बाहर से, तो फिर हम उसके इनसाइड जाएंगे। Always remember in health assessment we should follow some principles। उसमें ये प्रिंसिपल होता है कि जब भी हम कोई चीज़ चेक करेंगे, अगर वो बॉडी में दो है तो हम बायोलेटरल चेक करेंगे, मींस एक चेक करेंगे फिर दूसरी चेक करेंगे, हम उनको कंपेयर करेंगे, यूनिलेटरल तो बायोलेटरल। यूनिलेटरल एक साइड होती है, बायोलेटरल दोनों साइड होती हैं, तो हम एक चीज़ एग्जामिन करके उसको कंपेयर करेंगे दूसरी के साथ, तो हम उसको बायोलेटरल कहेंगे। उनके बाद दूसरा जो अहम प्रिंसिपल होता है वो होता है एक्सटर्नल टू इंटरनल। पहले हम एक्सटर्नल चीज़ें चेक करेंगे बॉडी की, एक्सटर्नल बाद हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, इंटरनल चेक करेंगे। ये प्रिंसिपल है हेल्थ असेसमेंट का। उनके बाद हम जब
आउटर चेक किया, फिर इनसाइड जाएंगे। ओपन योर माउथ, माउथ ओपन किया। उनके बाद हमने देखा पेशेंट के टीथ, टीथ कैसे हैं, नॉर्मल कलर के हैं या कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है, कोई डेंटल इंजरी है, कोई डेंटल कैरीज है, जिंजीवाइटिस है, गम्स ब्लीड है, टंग कैसी है, ग्लोस्टाइटिस तो नहीं है, टंग कन्फर्मेशन तो नहीं है, ओरल म्यूकोसा कैसा है पेशेंट का। ओपन योर माउथ। ओके, सो कलर ऑफ ओरल म्यूकोसा, देखेंगे पेशेंट ओरल म्यूकोसा कलर कैसा है, उसकी जो यूवला वो कैसा है। उनके बाद जो टंग है, टंग स्वालन तो नहीं है, ग्लोस्टाइटिस तो नहीं है, कोई टंग की इंजरी तो नहीं है, माउथ के अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं है, पेशेंट कोई हैबिट तो नहीं है स्मोकिंग की, या पेशेंट कोई और हैबिट तो नहीं है कि जैसे ट्यूबल है, सबस्टेंस अब्यूज़ है, ट्यूबल चीज़ें हैं जैसे सुपारी, पान, छालिया, वो तो नहीं खाते, तो उनकी चीज़ें, स्कार या कोई सर्जरी है तो सर्जरी कोई स्कार, कोई इसका कलर म्यूकोसल का। सो हमें इसकी जो ओरल कैविटी है वो भी नीट क्लीन है। उसके बाद हम थोड़ा सा अंदर लुक करेंगे थ्रोट की तरफ। यहाँ पे मैं एक स्टेप आपको मजीद जाऊँगा, हम इसको एग्जामिन करेंगे उसकी थ्रोट को थ्रू टंग डिप्रेसर। ये टंग डिप्रेस इंस्ट्रूमेंट है, इसको टंग डिप्रेसर से हम चेक करते हैं, टंग को प्रेस करते हैं और टंग के जो पोस्टीरियर सरफेस होते हैं, जो बेस ऑफ टंग होता है, वहां पे हम योलवा देखते हैं पेशेंट के, जो उसका थ्रोट है वो थ्रोट कैसे है, थ्रोट रेड है, टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है, टॉन्सिल तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है, या जो थ्रोट है पेशेंट का वो थ्रोट क्लियर है या कंजेस्टेड है। अगर थ्रोट कंजेस्टेड है इट मीन्स पेशेंट कोई ना कोई ईएनटी प्रॉब्लम है, या नोज है, या एलर्जिक है, या ईयर का प्रॉब्लम है। तो याद रखें ये जो हमारा फेरेंक्स है, लेरेंक्स एरिया है, ये हमारा एक जॉइंट बनता है। नोज का प्रॉब्लम होता है तो हमारा गला भी खराब हो जाता है, और गले में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा नोज और ईयर दोनों डैमेज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जब ईएनटी एग्जामिन करेंगे तो उसमें हम प्रॉपर चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे पेशेंट के नेक पे। नेक पे देखें कि नेक की एंटीरियर सरफेस कैसी है, नेक पे कोई स्कार तो नहीं है, और नेक पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेकिया। ट्रेकिया सेंट्रलाइज है या ट्रेकिया डेविएटेड है। ट्रेकिया पेशेंट की ठीक है, स्कार कोई नहीं है ऊपर का पेशेंट का, पॉजिटिव चीज़ पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ हम हेड की मूवमेंट भी देखेंगे कि पेशेंट जो मूवमेंट है वो रोटेटिंग मूवमेंट है, हाइपर एक्सटेंडेड बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका पेशेंट का हो गया हमारा स्कल कंप्लीट। पहले क्रेनियम, फिर फेस, और फेस में आईज, नोज, माउथ, लिप्स, एंड हम आएंगे अभी ईयर पे। तो ईयर पे हम जब जाएंगे तो हम ईयर में देखेंगे सबसे पहले, प्लीज पता ऐसे हो जाए। ओके, ईयर में देखेंगे आउटर शेप। आउटर शेप कैसी पेशेंट की, कोई यहाँ पे स्कार तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई इसको ट्रॉमा तो नहीं है, कोई शेप इसकी कैसी है। सो पीना इज ए नॉर्मल शेप, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो ईयर है, ईयर के नीचे ये जो हमारा मेस्टॉइड बोन है, मेस्टॉइड प्रोसेस है, इस चीज़ को मेस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं, मेस्टॉइड एरिया। यहाँ पे एक बहुत कॉमन होता है जब भी पेशेंट आरटीए का होता है, रेडियोटिक एक्सीडेंट का होता है, या उसका जो स्कैल्प फ्रैक्चर होता है। स्कैल्प फ्रैक्चर के पेशेंट की जो कॉमन साइन होती है वो होती है एकाइमोसिस। वहाँ पे क्या होता है, जो ये मेस्टॉइड रीजन है यहाँ पे डिस्कलेशन हो जाएगी, पर्पल कलर का ब्लड जम जाएगा। अगर यहाँ पे पर्पल कलर का एक ब्लड जम जाता है, यहाँ पे जो ये एरिया ये पर्पल हो जाती है, ब्लड कलेक्शन हो जाती है, तो ये एक हमें इंडिकेट करता है स्कैल्प फ्रैक्चर का। तो ये एक कॉमन चीज़ है। यहाँ पे ये मेस्टॉइड प्रोसेस पेशेंट का उसका आउटर एरिया बिल्कुल ठीक है, पीना पेशेंट का बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं ईयर स्पेक्यूलम, हम उसको यूज़ करेंगे ईयर स्पेक्यूलम को। हमारे पास जो ईयर स्पेक्यूलम होते हैं वो डिफरेंट साइज़ में आते हैं, ये डिफरेंट साइज़ के हमारे पास ईयर स्पेक्यूलम्स हैं। हमने ईयर स्पेक्यूलम के लिया, फिर हम डॉज लेंगे। हमने इसके अंदर जो चीज़ें चेक करनी है, आउटर ये बिल्कुल ठीक है, इसकी जो शेप है वो नॉर्मल है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, ना कोई स्कार है, ना कोई सर्जिकल का स्कार है, ना इसके अंदर कोई कट है, ना ट्रॉमा है, ना एक्सीडेंट है, ना कोई। उसके बाद हम थोड़ा सा इसका पुल करेंगे पीना को, इस एंगल पुल करेंगे, हम इनसाइड जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ईयर के अंदर कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई पसी डिस्चार्ज तो नहीं है, और उसके बाद हम ईयर स्पेक्यूलम देखेंगे। ये ईयर स्पेक्यूलम हम इसके अंदर डालेंगे, फिर हम इसकी इनसाइड मॉनिटर करेंगे इनर ईयर का।
इनर ईयर का देखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो पेशेंट का इनर ईयर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ईयर डिस्चार्ज तो नहीं है, कान का जो पर्दा है वो पर्दा ठीक है बिल्कुल, वो हमें कोई एक्सप्लोरेशन तो नहीं है और डिस्चार्ज नहीं है, अंदर से कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, कोई ग्रोथ तो नहीं है, या नोज के अंदर कोई ऐसी एक्सप्लोरेशन तो नहीं है, ये चीज़ें हम चेक करेंगे। ये हमारा हेड कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आएंगे पेशेंट की चेस्ट पे। हम पेशेंट की चेस्ट पे आएंगे तो चेस्ट पे हम क्या करते हैं, चेस्ट पे हम 4 चीज़ें अप्लाई करते हैं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड स्कल्टेशन। चेस्ट पे देखेंगे कि पेशेंट की चेस्ट है वो कैसी है, हम उसको एक्सपोज करेंगे, ठीक है। एक्सपोज करने के बाद हम देखेंगे चेस्ट की शेप कैसी है, चेस्ट की शेप कैसी है और चेस्ट बायलेटरल जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कैसी है, चेस्ट की शेप और टेक्सचर, चेस्ट के ऊपर कोई स्कार तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई चेस्ट ट्यूब तो नहीं डली हुई पेशेंट की, रिब्स कैसी हैं पेशेंट की, उनके बाद जो उनके पेशेंट की रिब्स हैं वो कैसी हैं और साइमेट्री कैसी है, यूनिलेटरल है बायलेटरल है। चेस्ट के बाद हम आएंगे पेशेंट के एब्डोमेन पे, ठीक है। एब्डोमेन एग्जामिनेशन के बाद हम देखेंगे, एब्डोमेन एग्जामिनेशन हम ये देखेंगे कि जो पेशेंट एब्डोमेन है उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप नॉर्मल होती है, सिलेंड्रिकल एब्डोमेन शेप है या उसके अलावा कोई और इसकी शेप है। कभी कभी होता है कि एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाती है, एब्डोमेन के स्कार हो जाते हैं, तो हम इसका पेशेंट का इसको हम चेक करेंगे, एक्सपोज करेंगे इस पेशेंट को। एब्डोमेन को हमने एक्सपोज किया, एक्सपोज करने के बाद देखेंगे एब्डोमेन की शेप कैसी है, एब्डोमेन की शेप कैसी है, एब्डोमेन का कलर कैसा है, कलर के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कोई स्कार तो नहीं है, कोई सर्जिकल स्कार नहीं है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई हर्निया तो नहीं, कोई ऐसे ऑर्गन बाहर से निकला हुआ तो नहीं है। तो इसकी हम देखेंगे कि इसका जो शेप है वो कैसी शेप है। शेप के बाद हम क्या करेंगे, इस पेशेंट को ये होगी हमारी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद हम करते हैं इस पेशेंट को पल्पेशन। पल्पेशन में हम क्या करते हैं, हमारी 2 किस्म की पल्पेशन होती है, एक हमारी सुपरफिशियल होती है, दूसरी हमारी डीप होती है। एक सुपरफिशियल में क्या करेंगे, हम राइट साइड जाते हैं, राइट साइड से हम अपने हैंड से ये सुपरफिशियल पल्पेट करते हैं। सुपरफिशियल पल्पेट के बाद हम थोड़ा सा डीप पल्पेशन करते हैं। डीप पल्पेशन में हम ये चीज़ें देखते हैं कि पेशेंट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में जो हमारे पास मेजर ऑर्गन होते हैं उसमें किडनीज आती हैं, लिवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है, उसके बाद हमारी स्प्लीन आती है, इस एरिया में हमारी स्प्लीन है, यहाँ पे स्टमक है, यहाँ सब मार्जिन रीजन के अंदर यहाँ पे लिवर है, लिवर के नीचे थोड़ा सा गॉल ब्लैडर है, और यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास जो वो अपेंडिक्स होती है। तो हम जब डीप पल्पेट करते हैं तो डीप पल्पेशन के बाद हम जो हमारी फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स से हम यहाँ पे जाके इनसाइड मार्जिन देखते हैं, जो टेक्सचर होता है इंटरनल ऑर्गन्स का, जो टेक्सचर है वो टेक्सचर कैसा है, यहाँ कोई इन्लार्जमेंट तो नहीं है, ऑर्गन की इन्लार्जमेंट तो नहीं है, हम ये देखते हैं कि ऑर्गन इन्लार्जमेंट तो नहीं है, और अंदर से जो साइज़ है ऑर्गन्स की वो साइज़ कैसी है, हम अपनी फिंगर से उस साइज़ को नोट करेंगे और इन्लार्जमेंट को नोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी टेक्निक आती है एब्डोमेन एग्जामिन की, वो होती है परकशन। परकशन में हम 2 चीज़ें एग्जामिन करते हैं, 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, एक प्लेक्सस कहते हैं, दूसरा प्लेक्सीमेटर कहते हैं। तो 2 हमारी फिंगर होती हैं, उससे हम क्या करते हैं, पल्पेज करते हैं। जो नीचे वाली हमारी फिंगर होती है उसको प्लेक्सीमेटर कहते हैं, प्लेक्सस कहते हैं, जो ऊपर वाली फिंगर होती है उसको हम प्लेक्सीमेटर कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम ट्रैपिंग करते हैं। ट्रैपिंग करने के बाद जो इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमेन के ऑर्गन्स होते हैं उनके जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो साउंड हम लिसन करते हैं कि साउंड कौन सा है, टिम्पेनिक साउंड है, डलनेस साउंड है, और होलो ऑर्गन के डलनेस साउंड होती है, और बाकी जो ऑर्गन उनकी कहाँ पे ऑर्गन खत्म होता है, और फिर वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसी ऑर्गन की कोई इलाजमेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल हम इसे करेंगे, यहाँ पे एग्जामिन करेंगे कैसे, इसको हम प्लेक्सस कहेंगे और ऊपर से हम प्लेक्सीमेटर कहते हैं। ये जो हमारा टिप ऑफ होती है, ये जॉइंट होता है, यहाँ पे हम इसको हम ऐसे एयर में छोड़ते हैं, इसको हम बायलेटरल करेंगे। साउंड प्रोड्यूस बाय परकशन, इसमें डलनेस की साउंडिंग आ रही है, तो जहाँ पे डलनेस साउंड होता है वहाँ पे हमारा होलो ऑर्गन्स होते हैं।
उसके बाद हम ये असेसमेंट करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इन्लार्जमेंट तो नहीं है, उनकी मार्जिन कितनी है, साइज़ कैसी है, उनका टेक्सचर क्या है, उनका कलर क्या है। एब्डोमेन एग्जामिन करने के बाद हमारा जेनिटल एग्जामिन आता है। जेनिटल एग्जामिन के बाद जो है हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इनको एग्जामिन करेगा। एब्डोमेन एग्जामिन के बाद हम क्या करते हैं, ये हमारी एंटीरियर अप्रोच थी। उसके बाद हम पोस्टीरियर अप्रोच है, फिर हम पोस्टीरियर साइड पे देखेंगे इस पेशेंट को कि पोस्टीरियर साइड पे इसकी चेस्ट कैसी है, ठीक है, इनका सर्वाइकल कैसे था, फिर इसकी चेस्ट में जो स्केपुला था, स्केपुला कैसे हैं, स्पाइन कैसी है पेशेंट की, पोस्टीरियर साइड की जो स्पाइन है, स्पाइन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई स्पाइनल इंजरी तो नहीं है, स्पाइनल ट्रॉमा तो नहीं है पेशेंट को, इसकी पूरी हम क्या करते हैं, पूरी एग्जामिन करते हैं पोस्टीरियर साइड कि कोई इंजरी तो नहीं है इस पेशेंट को, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, स्पाइन की डेविएशन तो नहीं है। स्पाइन की डेविएशन में ये चीज़ें देखते हैं कि जो स्पाइन की एक्सट्रीमिटी है, स्पाइन जो होता है उसकी कोई जो एक्सट्रीमिटी है वो कैसी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है या यहाँ पे कोई डेविएटेड है या कोई स्पाइनल प्रॉब्लम होता है, एब्नॉर्मलिटीज होती है स्पाइन की, उसमें काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, स्कोलियोसिस है, ये चीज़ें हमारी स्पाइन की डेविएशंस में आती हैं। तो उसमें देखेंगे हम स्पाइन कैसी पेशेंट की, स्पाइन इज स्ट्रेट, स्केपुला कैसे है पेशेंट का, इनका कलर कैसा है और इनकी साइज़ कैसी है, यहाँ पे कोई एबनॉर्मल स्कार तो नहीं है, कोई मास तो नहीं है, कोई सर्जिकल निशान तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं है पेशेंट की, ट्रॉमा नहीं है, इंजरी नहीं है, स्पाइन कैसी है पेशेंट की, मेन चीज़ होती है इसमें स्पाइन चेक करना, स्पाइन की डेविएशन तो नहीं है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस तो नहीं है, कोई स्पाइन की एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, तो ये पोस्टीरियर साइड पे चेक करने। उनके बाद हमारा आता है मस्कुलोस्केलेटल, उसमें हमारी पेशेंट की यहाँ पे आती है अपर आर्म्स। अपर आर्म्स में देखेंगे कि पेशेंट जो आर्म्स की है ये कैसी, मूवमेंट कैसी है पेशेंट की, ठीक है, ये मूवमेंट कैसी है, ठीक है, रिस्ट मूवमेंट कैसी है। यहाँ पे हम देखेंगे पेशेंट के जो अपर आर्म्स में कलर कैसा है, वहाँ पे कोई इंजरी तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं है, कोई कट तो नहीं है, कोई स्किन की शेप तो नहीं है, डेंडस तो नहीं है, ड्राइनेस तो नहीं है। फिर फिंगर्स में ये देखेंगे कि दोनों तरह ट्रेमर्स तो नहीं है पेशेंट को, हाथों में कभी कोई ट्रेमर्स होते हैं, फिर फाइन ट्रेमर्स होते हैं और मेजर ट्रम्स होते हैं, तो ट्रेमर्स तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है, ट्रेमर्स नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि फिंगर्स में हम देखेंगे कि काउंटिंग कैसी है, इनकी मूवमेंट कैसी है। फिर फिंगर में दो चीज़ें चेक करते हैं, नेल कैसे हैं पेशेंट के, नेल के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे क्वालिनो किया होता है, और प्लस में जो हमारी होती है यहाँ पे चेक करते हैं कैपिलरी रीफिल कैसी है पेशेंट की और इनका कलर कैसा है। फिर इसके हम पाम चेक करेंगे, ठीक है, पाम पेशेंट मॉइस्ट तो नहीं है, मॉइस्ट है, ड्राई है, रेडनेस है, क्योंकि ये कुछ थायराइड डिजीज़ होती हैं उसमें ये मॉइस्ट होती हैं, कुछ में जो ये ड्राइनेस होती हैं। ये इसका हो गया अपर आर्म। फिर इसी तरह हम देखेंगे पेशेंट लोअर लिम्स में अपन ये देखेंगे मूवमेंट कैसी है पेशेंट की, ये मूवमेंट कैसी है, मूवमेंट चेक करेंगे। फिर इसी तरह पेशेंट के जो टोज है वो टोज चेक करेंगे कि टोज कैसे हैं, यहाँ पे कोई इंजरी तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे पेशेंट का प्रॉब्लम होता है क्लब फुट होता है, या कोई प्रॉब्लम होता है पेशेंट को, डिफॉर्मिटी होती है फुट की, कोई फुट की डिफॉर्मिटी नहीं है, कलर कैसे इनकी। तो इसमें हम देखेंगे नेल का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, यहाँ पे कैसा इनकी ब्लड सर्कुलेशन कैसी होती है। उनके बाद है आप उसके बाद हम पेशेंट को इधर बिठाए, कुछ मूवमेंट चेक करते हैं। बेसिकली ये तो हमारे न्यूरोलॉजी का तो पार्ट है, लेकिन हेड टू जब आते हैं, जब मूवमेंट चेक करते हैं तो हम फिर यहाँ पे एक मूवमेंट चेक करते हैं। उसमें हम ये चेक करते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। हम इसकी लोअर लिम्स की मूवमेंट देखेंगे कि मूवमेंट कैसी है। ये फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन कैसी है पेशेंट की। देन एक्सटेंशन कैसी है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन एंड रोटेशन, यह मूवमेंट चेक करेंगे। तो बेसिक वीडियो था फ्रॉम हेड टू टो। इसमें हमने ये चीज़ चेक की कि पेशेंट की हेड से लेकर टो तक इसका जो जनरल ओवरव्यू था पूरी बॉडी का, हेड का, फिर नेक का, आईज का, नोज का, माउथ का,
थायराइड का, चेस्ट का, एब्डोमेन का, पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। तो ये हेड टू टो हमने थोड़ा सा इसको बेसिक ओवरव्यू किया। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक सिस्टमेटिक एग्जामिन करेंगे, फिर जो दूसरी स्किल्स हैं हम उस पर जाएंगे। थैंक यू सो मच।